Okay, so today we are going to start the last paragraph of this chapter. We have already learned about how the Britishers they started entering India, how they started trade in India, and slowly with their clever policies they entered even the politics of India. We learned about the subsidy policy of Wellesley. We learned about the annexation policy of Dalhousie, and with you guys a very strong conspiracy. They started expanding the British rule in India, especially after the during the rule of Dalhousie. Majority of the part of India was under the Britishers. But for Dalhousie, it is said that no doubt he extended the British rule in India, but along with it, he was a reformer also. He started many facilities like India, like the railways, the postage and telegraph, the wireless system. He also made laws to prohibit child marriages. He supported widow remarriages. He started English medium schools. He also started university, so many things. But the Indian people were still under doubt. They were still not satisfied. उनको लगा कि ये लोग अपने लिए कर रहे हैं. It is for their benefit और वो गलत भी नहीं थे. Actually, Britishers were doing for their smooth administration. But indirectly, the Indians were, you can say, benefited. But then also there was a feeling of dissatisfaction among the people. वो ब्रिटिशर्स को अभी तक ऐसा मान चुके थे. पहले तो उनको लगता था कि चलो बिजनेसमैन है, ट्रेडर्स है, चीजें सेल करेंगे, परचेज करेंगे, पैसे लेंगे, पैसे देंगे, बात खत्म. बट नाउ देर इज अ फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फेक्शन अमंग द पीपल. दे वांट, दे केम टू नो कि ये लोग हमारी जो एज ओल्ड सिस्टम है, जैसे चाइल्ड मैरिजेस है, सती सिस्टम है, फिर वो इन्फेंटिसाइड, दूध पीती जिसको बोलते हैं कि इफ गर्ल चाइल्ड इज बोर्न तो उसको मार देते थे. तो ये एक्चुअली फॉर द इंडियंस इट वाज अ कल्चर. ये हमारा रिलीजन है, ये हमारा ट्रेडिशन है. और ब्रिटिशर्स को पता था, आज तो हमको भी पता है कि ये सब गलत बात है. सती सिस्टम में क्या होता है, व्हेन द हस्बैंड डाइज द वाइफ आल्सो इज बर्न्ड अलाइव. तो हमें पता है कि जो जाने वाला था वो तो चला गया, उसके पीछे जिंदा औरत को क्यों जला रहे हो? डू यू थिंक इट इज प्रॉपर? ऑब्वियसली इट इज नॉट प्रॉपर. वाई? बिकॉज वी आर एजुकेटेड. हमें पता है कि लाइफ की वैल्यू क्या है. और उस टाइम पे ब्रिटिशर्स को भी ये वैल्यू पता थी, इसीलिए दे वर स्टॉपिंग ऑल दीज सिस्टम्स. बट हमें क्या लगा उस टाइम पे कि वो लोग हमारा रिलीजियन जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. एंड सो द पीपल डिससेटिस्फाइड. ओके, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द चैप्टर, द पैराग्राफ, बट वापस पहले से ही शुरू करते हैं ताकि सब कुछ पुराना जो है वो याद आ जाए. ठीक है. After the policy of subsidiary alliance, Dalhousie policy of annexation shook the whole nation terrible. This resulted in the dissatisfaction among the people towards the British. You must have seen the film Kranti and Mangal Pandey. ये भी हमने बात किया था, है ना? If you have not seen, then try and see these movies. At this time, the people were suppressed. Suppressed का meaning लिखा था? Suppressed. Yes. Suppressed meaning exploited under the dictatorial regime of the British. Dictatorial meaning cruel, and regime meaning rule. Right? So the people were exploited by the cruel Britishers. In addition to that, the reforms made by Dalhousie added fuel to the fire. Added fuel to the fire. अब ऑलरेडी आग जल रही है और उसमें आप पेट्रोल डालोगे तो क्या होगा? ये आग जो है वो और ज्यादा स्ट्रेंथ से जलेगी. तो पीपल वैसे भी डिससेटिस्फाइड थे, उनके कल्चर थे, उनके जो सिस्टम, हाँ, वो सब ऑलरेडी ब्रिटिशर्स धीरे धीरे करके स्टॉप करवा रहे थे. प्लस इन एडिशन टू दैट ये डेलाउजी की एनेक्सेशन पॉलिसी.
तो दिस पॉलिसी एडेड फ्यूअल टू द फायर, पेट्रोल टू द फायर, राइट. तो पीपल एक्चुअली आग लगी थी और पेट्रोल डाला था, ऐसा नहीं, बट पीपल वर ऑलरेडी डिससेटिस्फाइड एंड दिस एनेक्सेशन पॉलिसी एडेड टू द डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल. ओके. Different people reacted differently to railways, facilities of post and telegraph and western education. सब लोगों का जो रिएक्शन है वो अलग अलग था, क्योंकि उनको लगा कि रेलवे स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें लॉस होगा, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ है, वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न मीन्स इंग्लिश एजुकेशन. इफ देयर विल बी, आजकल हम लोग क्या देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, हम लोग खुद भी, आप लोग हो, मेरे बच्चे हैं, मेरे रिलेटिव्स, ऑल आर गोइंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल. तो इससे क्या होता है कि हमारी जो मदर टंग है, हमारी जो नेशनल लैंग्वेजेस है, उनका इंपॉर्टेंस कम होता जा रहा है, राइट. आपको पता है कि आप जनरली रेगुलरली गुजराती में बात करते हो घर पे, यस और नो. 24 आवर्स में से 23 आवर्स यू टॉक इन गुजराती, है ना. फिर भी अगर आपको बोला जाए कि 37 मतलब क्या, तो आपको नहीं पता है, या फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा. 37 मतलब 7 3 37, है ना. तो जैसे जैसे सपोज राइट नाउ यू आर इन 8th स्टैंडर्ड, आप अप्रोक्सीमेटली यू विल बी 12 to 13 ईयर्स, राइट. तो 13 ईयर्स से दिन के 23 आवर्स आप गुजराती बोलते हो, देन ऑल्सो 37 79 62, तो आप थोड़ा सोचना पड़ता है. इवन इफ इट इज योर मदर लैंग्वेज, यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस. So this shows that English education is harming our own mother tongue. और यही डिससेटिस्फेक्शन उस टाइम भी लोगों को था कि इंग्लिश एजुकेशन से हमारे कल्चर में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और हुए हैं, आपको पता है, राइट. आपने देखा होगा कि कभी कभी आप बाहर जाकर, इट हैज बिकम अ हैबिट कि बाहर जाओगे और प्योर गुजराती में बात करते हो तो शर्म आती है, राइट. हमारे पेरेंट्स है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, तो हमको उनको हमारे ग्रुप में ले जाने के लिए शर्म आती है. यू माइट हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग, है ना. तो दिस शुड नॉट बी, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर लैंग्वेज, है ना. मुझे गुजराती इज माई मदर टंग, आई एम प्राउड. मैं कहीं बाहर जाकर भी गुजराती बोलने में मुझे शर्म नहीं आती. हाँ, ये क्लास में आपके साथ नहीं करूंगी, इट इज अ रूल, because you are studying in English medium school, because you are paying so much fees for learning English, you should be knowing English also. But this does not mean that Gujarati becomes a secondary language. No. Hindi becomes a secondary language. No. It is equally important as the Western education. Okay. Orthodox people. Now this is your next word. Orthodox. Orthodox meaning old-minded people. अभी आपको पता है ना ओल्ड माइंडेड मतलब क्या, पुराने जमाने के. समझ में आ रहा है? Okay, write this next word, orthodox, meaning old-minded. Orthodox people felt that the British, yes, wanted to destroy their culture. ये हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय कर देंगे. ओके, दे वांटेड टू डिस्ट्रॉय अवर कल्चर. धीरे धीरे वो उनका सब हमें सिखा देंगे. आप देख रहे हो कि आजकल हम उन्हीं की लैंग्वेज बोलते हैं, उनके जैसे कपड़े पहनते हैं, राइट. हमारे जो ओरिजिनल कपड़े पहले पहनना चाहते थे वो तो हम पहनते ही नहीं है ना. ये जो स्कर्ट्स और जीन्स और टी शर्ट्स और वो जो पहनते हैं वो उनके कपड़े हैं. Our people did not used to wear these clothes. Okay, so this is what the orthodox people thought, that they are destroying our culture. The reforms done by the British were basically for running the administration smoothly. The dissatisfaction of people had reached a point of saturation. Saturation means limit. Write the next word. Saturation. Saturation meaning limit. अभी उनका डिससेटिस्फेक्शन जो है एक लिमिट तक पहुंच गया, एक हाइट तक पहुंच गया. एंड दे वर इन द स्टेट ऑफ रिबेलियन. अच्छा, लिमिट लिख लो, देन आई विल गिव यू द नेक्स्ट वर्ड. रिटर्न सैचुरेशन मीनिंग लिमिट. देन कम्स दिस वर्ड rebellion, means to fight, oppose करना,
कंप्लेन करना. Next meaning is rebellion, meaning fight. Have you written this? Okay, let's read this sentence again so that now you can understand properly. The dissatisfaction of the people had reached a point of saturation and they were in the state of rebellion, which resulted in the freedom movement of 1857. Now, saturation. Suppose, take an example, मैंने आज आपको होमवर्क दिया कि चैप्टर 4 का जो पेज है, ये फर्स्ट पेज, ये वाला पेज आप पूरा का पूरा क्लास वर्क में लिखोगे तो आपको लगेगा कि चलो ठीक है, वैसे भी हमारे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, हम लोग लिख लेंगे. फिर कल मैं क्या करूंगी, आपको 2 पेजेस दूंगी. आई विल टेल यू टू राइट पेज नंबर 19 एंड 20. ये पेज, दोनों पेज. तो आप बोलोगे कि मैडम पहला पेज तो ऑलरेडी लिख लिया. नहीं, प्रैक्टिस होगी, दोनों पेज लिखो. फिर परसों मैं बोलूंगी ये राइट पेज नंबर 19, 20, 21 ऑल 3. फिर मैं बोलूंगी राइट दिस पेज ऑल्सो. तो पहले पहले आप क्या करोगे, चलो हमारी प्रैक्टिस हो रही है, चलो मैडम है होमवर्क दे रहे तो करेंगे, चलो वी आर द स्टूडेंट्स, इट इज फॉर आवर बेनिफिट. तो आप करोगे करोगे करोगे, लेकिन कब तक? एक टाइम आएगा जब मैं आपको बोलूंगी 10-10 पेज करना है, तो कब तक आप करोगे, राइट? तो देर विल बी अ पॉइंट, देर विल बी अ टाइम जहां पर सेचुरेशन आ जाएगा कि चलो अब लिमिट आ गई, अब इससे ज्यादा नहीं करेंगे. फिर आप लोग क्या सोचते हो, सब लोग मिलकर डिसाइड करते हो कि अभी मैडम कुछ भी होमवर्क दे हमें नहीं करना है. हो सकता है ना ऐसा? वाई? बिकॉज यू आर एट अ पॉइंट ऑफ सेचुरेशन. एक लिमिट आ गई कि एक पेज किया तो 2 दे देते हैं, 2 करते हैं तो 3 दे देते हैं, 3 करते हैं तो 4 देते हैं. नाउ इट्स अ लिमिट. अभी अगर मैडम एक पेज भी ज्यादा देंगे तो हम लोग रिवोल्ट करेंगे, हम लोग रिबेलियन करेंगे, राइट? तो ऐसे ही एक के बाद इतने रीजंस आ गए कि नाउ द पीपल ऑफ इंडिया आर टोटली डिससेटिस्फाइड एंड इट इज अ पॉइंट ऑफ सेचुरेशन. सो नाउ द पीपल थॉट कि अब हम इनको फॉलो नहीं करेंगे, अब हम इसको ओबे नहीं करेंगे, वी विल ओपोज, वी विल रिबेल, राइट? और फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ऐसा हुआ इन 1857. पहली बार ऐसा हुआ दैट ऑल द इंडियन पीपल फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग आपके पॉलिसी को, आपके रूल्स को ओबे नहीं करेंगे. तो पहली बार इंडियन पीपल ओपोज द ब्रिटिशर्स. और वो कब हुआ था? इन द ईयर 1857. So it is said that 1857 is the first revolt of the Indians. पहली बार इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को अपोज किया था. और इसके ऊपर ये जो है ना मूवमेंट ऑफ 1857, उसके ऊपर हमारा पूरा चैप्टर है. नेक्स्ट जो हिस्ट्री का चैप्टर, उसमें हम यही लर्न करने वाले कि हाउ द पीपल रिवोल्टेड, हाउ द पीपल फॉट विद द ब्रिटिशर्स बिकॉज दे वर डिससेटिस्फाइड. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. और डिससेटिस्फाई होके जब उन्होंने रिवोल्ट किया था, वो रिवोल्ट में क्या क्या हुआ वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे. मतलब एंड ऑफ द चैप्टर बट नॉट एंड ऑफ द टॉपिक. टॉपिक अभी कंटिन्यू रहेगा. ओके, यस. एनी डाउट्स एनीबॉडी? यस, बोलो. शैल वी स्टार्ट विद द एक्सरसाइज? ये दिस वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था that in 8th standard we are going to learn everything related to the British rule in India. Okay, और 9th में we are going to learn about the freedom fight. Yes, it is divided in the same. हमारे स्टेट बोर्ड की बुक से इस तरह से डिवाइड की गई है कि 7th स्टैंडर्ड में हम लोग लर्न किया द किंग्स बिफोर द ब्रिटिशर्स. 7th में भी लर्न अबाउट द किंग्स. फिर उनके बाद ब्रिटिशर्स आए, वो 8th में. और 9th में हम लोग क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स को पहले तो भगा देंगे और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ये जो लीडर्स थे उन्होंने कैसे इंडिया को वापस से डेमोक्रेसी में कैसे कन्वर्ट किया एंड हाउ वी गॉट इंडिपेंडेंट.
हाँ, वो गांधी जी और सरदार पटेल वो वाला सब हम 9th पे लर्न करेंगे, सुभाष चंद्र बोस एवरीथिंग. ओके, चलो, you should be on your page 26 of the workbook. Yes. Yes. चलो, अभी MCQs, fill in the blanks, true false, match the following. ये 4 questions आपको find करके आंसर्स लिखने हैं. I will send you the PDF जिसमें से आप कॉपी करोगे. Yes, you will only find out the answers. यू विल ओनली फाइंड आउट द आंसर्स और मेरी पीडीएफ में से आप सिर्फ चेक करोगे. ठीक है, जो कि आपको आज ही मिल जाएगी बिकॉज टुडे इज योर होमवर्क डे. एंड लिसन, लास्ट चैप्टर की तरह मत करना. अगर मैं पीडीएफ में क्वेश्चन 1 2 3 4 भेजती हूँ तो आप वापस मुझे 1 2 3 4 करके मत भेजना. आगे के क्वेश्चन आंसर्स भी यू हैव टू सेंड इट एज योर होमवर्क. जो लास्ट टाइम 3 4 लोगों ने मिस्टेक किया था ना, पृथु एंड मैथिल एंड जयती एंड ऑल दी स्टूडेंट्स, डोंट सेंड ओनली ऑब्जेक्टिव्स. खास होमवर्क में रीड करना कि मैंने इंस्ट्रक्शंस क्या लिखे हैं. इन द इंस्ट्रक्शंस whatever questions are asked, that many questions you will submit. Am I very clear, students? हाँ, यस यस यस, उतना सारा नहीं है. ठीक है, चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली. 5.1, ऑल ऑफ यू रेडी? ओके, हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी इन इंडिया? चलो, आप बताओ. लॉर्ड वेलेस्ली. एंड हु एक्सेप्टेड? सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया था? Yes, it is Nizam of Hyderabad. So I'm not marking the answer directly. आप लोग लिखो. I am dictating and you will write. अच्छा, डाउट किसको था पहले वो बोलो. ओके, चलो, राइट द आंसर. लॉर्ड वेलेस्ली. L capital, W capital. I'm writing the spelling. Lord, L capital. Wellesley, W capital. Lord Wellesley. Then remaining from the question, introduce the subsidiary alliance policy in India. Introduced the subsidiary, S capital. Spelling is there in your question. Alliance, A capital. Policy, P capital. In India, I capital. In India. Full stop. Nizam of Hyderabad, again N capital. Nizam of Hyderabad. वापस क्वेश्चन में से. Accepted this plan first. Accepted this plan first. Full stop. Complete. I am repeating. Lord Wellesley introduced the subsidiary alliance policy in India. Full stop. Nizam of Hyderabad accepted this plan first. Full stop. Complete. Any doubts? Okay, number 2. Which policy was like a sweet poison? Yes, again write down directly. Subsidiary alliance policy. Write down directly. Subsidiary, S capital. Alliance, A capital. Policy, P capital. Subsidiary alliance policy. Then from the question, was like a sweet poison. Was like a sweet poison. Full stop. Complete.
Subsidiary alliance policy was like a sweet poison. Any doubts? Okay, number 3. By enforcing which policy did Wellesley make the British rule supreme in India? वेलेस्ली क्या फॉलो करते थे? नो, सब्सिडियरी तो एग्रीमेंट था. वो मंकी और कैट वाली स्टोरी. यस, इट इज डिवाइड एंड रूल. वेलेस्ली का एक ही पॉलिसी था, डिवाइड एंड रूल. झगड़ा करवाओ और खुद का बेनिफिट ले लो. ओके, राइट डाउन डायरेक्टली अगेन. वेलेस्ली, W capital. Wellesley made the British rule, made the British B capital, British rule supreme in India. क्वेश्चन में है ऑलरेडी स्पेलिंग. सुप्रीम इन इंडिया, I capital, India, by enforcing, is there in the question, by enforcing the policy of the policy of divide and rule. D capital, A capital, R capital. Divide and rule. Full stop, complete. I repeat. Wellesley made the British rule supreme in India by enforcing the policy of divide and rule. Any doubts? Okay, number 4. When did the British interfere in the administration of Punjab? पंजाब में वो लोग जा ही नहीं रहे थे, लेकिन फिर बाद में पंजाब में भी लगे. Yes, very good. When did they interfere? After the death of Maharaja Ranjit Singh. Why? Because Maharaja Ranjit Singh was very powerful. His soldiers were well trained by the European trainers. Okay, and he had modern weapons also. So till Maharaja Ranjit Singh, Britishers were maintaining friendly relations with them. And as soon as he died, they annexed Punjab also. Okay, again I am dictating, write down. The British B capital, British interfered. क्वेश्चन में स्पेलिंग है लेकिन हम लोग डी ऐड करेंगे. Interfered in the administration in the administration of Punjab P capital after the death of Maharaja Ranjit Singh. Maharaja M capital, Ranjit R capital, Singh S capital. After the death of Maharaja Ranjit Singh. Full stop, complete. I am repeating. The British interfered in the administration of Punjab after the death of Maharaja Ranjit Singh. Any doubts? Okay. Yes, yes, yes. Okay, go to the next page of your workbook. Who did not allow childless kings to adopt a son? Childless king. जो भी किंग को चाइल्ड नहीं था, they were not allowed to adopt the son. Now, who did not allow?
यस, ये भी हमें पता ही है, सो डायरेक्टली राइट डाउन लॉर्ड डेलहाउसी, एल कैपिटल डी कैपिटल, लॉर्ड डेलहाउसी। फिर बाकी का क्वेश्चन में से डिड नॉट अलाउ चाइल्डलेस किंग्स टू अडॉप्ट सन, डिड नॉट allow childless kings childless kings to adopt son, full stop, complete. Any doubt? Okay, now comes number 6. Which states were declared hairless? अभी hairless का स्पेलिंग देखो, इट्स HEIR, HAIR नहीं है। हेयर मतलब वो सर के बाल, एंड HEIR हेयर मीनिंग SON सन। ठीक है, ये खास याद रखना। हेयरलेस मतलब बिना बाल के नहीं, कि आपके बाल नहीं है तो आपका स्टेट डेलहाउसी ले लेगा, नहीं। नॉट HAIR बट HEIR, HEIR हेयर मीन्स सन। समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? तो विच स्टेट्स वर डिक्लेयर्ड हेयरलेस एंड अनेक्स्ड बाय डेलहाउसी, मतलब कौन कौन के स्टेट्स में किंग को सन नहीं थे और वो डेलहाउसी ने ले लिए। आर यू ऑल वेरी मच क्लियर विद द क्वेश्चन स्टूडेंट्स? ओके ओके, यस। सो अभी स्टेट्स के नाम जो है वो मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रही हूँ, और बाकी का आप लिखोगे क्वेश्चन में से। ठीक है, चलो, हियर इज योर आंसर। पहले तो ये लिखो, यहाँ से स्टार्ट करो। सतारा, झांसी, नागपुर एक्सेट्रा, इतना लिखो, फिर आगे का मैं लिखवाती हूँ। सतारा एस कैपिटल, झांसी जे कैपिटल, नागपुर एन कैपिटल एक्सेट्रा। फिर बाकी का क्वेश्चन में से वर डिक्लेयर्ड हेयरलेस एंड एनेक्स बाय लॉर्ड डेलहाउसी, पूरा क्वेश्चन में से। डू यू वांट मी टू रिपीट के समझ में आ गया? ओके, सो नाउ आई एम रिपीटिंग होल आंसर, लिसन वेरी केयरफुली। सतारा, झांसी, नागपुर एक्सेट्रा वर डिक्लेयर्ड हेयरलेस एंड एनेक्स बाय लॉर्ड डेलहाउसी, फुल स्टॉप। Clear all of you? Okay, I'm giving 1 minute of time. Chalo, now number 7. When and where was the first railway line started in India? The first railway line in India. Okay, this answer I'm marking, you have to copy. देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ध से, अभी ध का टी जो है वो आप कैपिटल कर देना। ठीक है, the first railway line was started between Mumbai and Thane in 1853 CE. Up to 1853 CE. That is your answer number 7. What it all of you? When, sorry, in whose time did railway, telegraph and post system start in India? Yes, Dalhousie. Chalo, I'm dictating, write down. Railway, railway, comma, telegraph, telegraph, and post system, and post system in India, in India started during, started during the time of
The time of Lord Dalhousie. Lord L capital, Dalhousie D capital. Full stop. Complete. I repeat, railway, telegraph and post system in India started in the time of Lord Dalhousie. Any doubts? Okay. And the last one. In which cities were universities established during 1857? Again, I'm marking the answer. It starts from here. The se start karo. The first three universities in India were established in Mumbai, Chennai and Kolkata in the year 1857 CE. Up to this. This is your answer 9. फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो. अगर लेक्चर खत्म हो जाता है तो आपका मिस हो जाएगा. टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट.